Visible to all of you. Marine, Ayan, Akbar, Azik, Shaza, Fatma. इसी के बाद बहुत समझाना है सबको visible है. So अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होती है. हमें क्या चाहिए इसके लिए? हमें एक कॉइल चाहिए. आपको पता है कि आपके पास जब आप कॉइल करते हो, सोलेनॉइड बनाते हो, तो आप टर्न्स देते हो, नंबर ऑफ टर्न्स देते हो. ठीक है. यहाँ पर इंडक्शन का क्या फिनोमिना है? यू हैव टू टेक वन परमानेंट मैग्नेट. ओके अनस, ठीक है. आपको क्या करना है? आपको एक परमानेंट मैग्नेट लेना है और आपने अपनी सोलेनॉइड, जैसे कि आपने सोलेनॉइड बनाया था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही एक सोलेनॉइड बनानी है. और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास परमानेंट मैग्नेट है एंड कॉइल्स है, यानी कि लूप्स है. दैट इज सिंपल. आप कॉपर वायर लेते हो, उसके आपको लूप बनानी है एंड देन यू हैव टू कनेक्ट these loop copper wire with the galvanometer. You know what is a galvanometer? Can anybody tell me what is a galvanometer? Yes. What is a galvanometer? मैंने आपको लाके दिखाया था क्लास में. What is a galvanometer? I have introduced three types of instruments: a galvanometer, ammeter, and voltmeter. What is the purpose of a galvanometer? Galvanometer, yeah, it's detect current. Okay, and what is the purpose of ammeter? Ammeter is actually measuring the current, while galvanometer is just detecting the current, that there is a presence of current, right? Or you can measure a small amount of current through galvanometer. And what is the purpose of voltmeter? It is used to measure voltage. Okay. Okay, so what are the things we need for this? We need one permanent magnet, one coil. You can easily make the coil as you have done in your home. Then you need one galvanometer, which is attached by the copper wire. Okay, the positive one is attached with the positive terminal and the negative one is attached with the negative terminal. आपके पास galvanometer में दो terminals होते हैं, positive red से show हो रहा होता है, negative black से show हो रहा होता है. ठीक है. आपको एक वायर अटैच कर देनी है पॉजिटिव टर्मिनल से और एक वायर अटैच कर देनी है नेगेटिव टर्मिनल से. अब आप क्या एक्सपीरियंस करोगे ये देखते हैं. अब आपको पूरा प्रोसेस बना रहे हैं कि कैसे कॉइल बनाएं. कोई भी वुडन आप पेंसिल ले लो अपना, या कोई भी सिलेंड्रिकल शेप कोई भी ले लें और आप इसमें आराम से कॉइल बना सकते हो. Then you have to attach both of the wire with the galvanometer and you have to take one permanent magnet. You can see that magnet is stationary now. Means velocity is zero. Magnet is stationary now and galvanometer is showing no deflection. Let's see what happens. This is the case number one. Okay, now you can see that when the north pole of the magnet, now it's moving inward direction. क्योंकि आपके पास सोलेनॉइड में आपको पता है कि एक पोल आपका नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है, एक पोल साउथ पोल जनरेट होता है. ठीक है. वो इटसेल्फ एक मैग्नेट जनरेट हो जाता है जो हम मैन मेड करते हैं. ओके, अब हमने परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल इनवर्ड मूव करवाया सोलेनॉइड के. मींस नाउ इट्स नॉट स्टेशनरी, इट्स मूविंग. आपने डिफ्लेक्शन होते हुए देखी टूवर्ड्स दिस साइड. Okay.
जब आपने इसको इनवर्ट मूव किया गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, और जब भी दोबारा से स्टेशनरी हो गया आपका मैग्नेट तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो की, मींस नो डिफ्लेक्शन। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि only moving state of a magnet shows you a deflection of what, that means a current is inducing, and you can see that there is no connection between the magnet and solenoid, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो इंड्यूसिंग का मतलब समझे आप, इंडक्शन का मतलब समझे आपके, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट किसी भी चीज का इंड्यूस होना। यहाँ पर क्या इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मींस करंट इंड्यूस हो रहा है। ओके, सो and what I have said you that keep few things in your mind. Number one, change in magnetic field. You can see there is a change in magnetic field, change in velocity. That means change in magnetic field. What you can see, there is an induce in current which can be seen by the galvanometer. Okay, but when the magnet is stationary, means at zero velocity, there is a no change. No change, that means no current is induced. Clear? So what are the important points I already said you to keep into your mind? Changing magnetic field, induced current. Okay? And you can see it by the animation. And you have also viewed that what is an induction. Without physical contact, there is a induction, there is an induce of current without any physical contact. जब तक आपका मैग्नेट मूविंग है, डिफ्लेक्शन होगी. Okay, so number one case is when magnet is stationary, galvanometer shows you no deflection, null deflection. When the magnet is moving inward towards the solenoid, you can experience the deflection in opposite side. But what happened when I remove the magnet from the solenoid? Now I will experience deflection in the opposite side. So that is the fourth case. ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और स्टेट एक्सपेरिमेंट में बताया था, वहां पर भी कुछ ऐसे ही नहीं था कि जब करंट वायर में से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है और डिफ्लेक्शन शो हो रही है कंपास के अंदर, ऐसे ही था। मूविंग करंट में से इंड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस हो रहा है करंट, और वहां पर कंपास की डिफ्लेक्शन आपको शो कर रही थी। कंपास जब नीचे रखा हुआ था तो वो डिफरेंट वे में रिफ्लेक्ट कर रहा था, कंपास जब ऊपर रखा हुआ था वो डिफरेंट वे में रिफ्लेक्ट। सिमिलरली जब मैं मैग्नेट को इनवर्ट मूव करती हूँ तो डिफ्लेक्शन इस साइड में है, और जब मैं मैग्नेट को आउटवर्ड मूव करती हूँ डिफ्लेक्शन इस साइड में। ठीक है, और जब मेरा मैग्नेट स्टेशनरी है क्या क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जब चेंज होगा, स्पीड अप होगा या स्लो होगा, जब चेंज आएगा जब करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब आप देख सकते हो दोनों केसेस कि जब आपने मैग्नेट को आउटवर्ड मूव किया डिफ्लेक्शन कहाँ शो हो रही है, और जब आपने मैग्नेट को इनवर्ड सोलेनॉइड मूव किया तो डिफ्लेक्शन किस तरफ शो हो रही है। ठीक है, सो दैट इज the phenomena of electromagnetic induction. ये होती है electromagnetic induction. क्लियर है? अभी हमने डेफिनेशन देखी कि what is electromagnetic induction, the phenomena of inducing EMF in the circuit due to changing magnetic field. And here we have experienced it visually. हमने एनिमेशन से इसको एक्सपीरियंस करके देखा, प्रैक्टिकली भी देखा कि दिस इज रियलिटी, कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। Okay, now see the other side of the picture. Now we have changed the polarity of the magnet. पहले यहाँ पर नॉर्थ पोल था, मैंने नॉर्थ पोल को रिप्लेस कर दिया साउथ पोल से। अब डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है?
अब आप देख सकते हो कि पहले जब मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा हुआ था और मैं इसको इनवर्ट मूव कर रही थी तो मेरे पास डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में इस साइड पर आ रही थी, ऐसे ही था। डिफ्लेक्शन मेरे पास इस साइड पर आ रही थी ना, जब मैंने यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा हुआ था और मैं उसको इन्वर्ट मूव करवा रही थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर साउथ पोल रखा, इसको रिमूव कर दिया नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से, नॉर्थ पोल को चेंज किया साउथ पोल से, तो अब आप देख सकते हो कि आपकी जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो आपने इसको विजुअली एक्सपीरियंस कर लिया कि द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Okay, so Sade has explained the electromagnetic induction. जो और स्टेट ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसने ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्शंस, उसने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया था कि मूविंग करंट हैविंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और उसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था। और उसने ये भी दिखाया था कि हाँ डिफ्लेक्शंस डिफरेंट वे में हो रही हैं कंपास में, लेकिन उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। फ्राडेस ऑब्जर्वेशन ये थी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फ्राडेस ने एक्सप्लेन किया था, और फ्राडेस की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब मैग्नेट मूविंग स्टेट में होगा, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, जैसे आप देख सकते हो, आप फ्राडेस ऑब्जर्व्ड that the current flowing in the coil only when there is a relative motion between the coil and the magnet. So that was the observation done by Faraday. Faraday की observation के बाद इन्होंने experiment proof किए थे, जिनको हम कहते हैं Faraday's experiment. Okay, इसमें आप देख सकते हो when the north pole is moving towards the coil, right? You can see the deflection is in this way. And if the north pole is moving out from the coil, you can see the deflection is in the another way. So he has done different observations. Okay, so on the whiteboard, I have write few things that what are the magnitude of inducing EMF depends on. The three many points likhe the, that is the number of turns in the coil, the strength of the magnet, and the speed in which the magnet is plugged into and withdrawn from the solenoid. मैंने ये थ्री फैक्टर्स लिखे थे। अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स फ्राडेस ऑब्जर्वेशन में है जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आपको रिफ्लेक्शन ज्यादा होती हुई नजर आएगी या कम होती हुई नजर आएगी। तो पहला फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करने में भी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओ कि तो आपके पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। आपने देखा था, आप अगर करंट बढ़ा दोगे तो आपने ये भी एक्सपीरियंस किया था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ज्यादा मैग्नीट्यूड का मैग्नेट लेकर, ज्यादा पावर का मैग्नेट लेके, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ करंट बढ़ जाएगा। जब करंट बढ़ जाएगा, इंड्यूस तो करंट उतना ही हो रहा है, लेकिन टर्न्स बढ़ाने से ज्यादा करंट आपके पास गैल्वेनोमीटर में जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं काम। So these are the factors which are depending on increasing current. Okay. So that was the first observation of Faraday's, when the magnet and the coil both are stationary.
there is no flux induced. What is the flux? A flow of current that is induced in the coil due to the magnetic field, change in magnetic field. तो यहाँ पर तो कोई change नहीं आ रहा, magnetic field में magnetic field stationary है, ठीक है, changing magnetic field ही induce करेगा current. ये इनका फर्स्ट केस था जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिसको अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा. Okay, now you can see when the magnet is moving towards the coil, here you can see the reflection in the galvanometer. Why? Because there is a change in the flux. ठीक है, फ्लक्स क्या है? फ्लक्स कहते हैं फ्लो को. फ्लो किसका हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्योंकि मैग्नेट मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट. ठीक है, क्या इंड्यूस कर रहा है? करंट इंड्यूस कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है, जब ही करंट इंड्यूस होगा. मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ना मैग्नेट के अराउंड, लेकिन वो स्टेशनरी, वो चेंज नहीं हो रही, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो क्या करंट इंड्यूस नहीं होगा. ठीक है, और जब वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इनवर्ट मूव कर रही है, ठीक है, तो आपने देखी रिफ्लेक्शन आपके गैल्वेनोमीटर में इस तरह. ओके, अब मैं अगर इसको डिफरेंट केस में देखती हूँ तो कैसे देखूंगी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने लेक्चर में नोट करते हो. Okay, so that is the sum of what we have discussed about position of magnet. अगर magnet rest पे है, no reflection in galvanometer, इसको note कर ले, इसका screenshot ले ले. Magnet move towards the coil, deflection in the galvanometer in one direction. Magnet is held stationary at the same position near the coil. Near the coil रखा हुआ है लेकिन stationary है. Again there is no deflection. So what you have concluded, change in magnetic field, velocity of magnetic field is matter. Okay. Magnet moves away from the coil, deflection in galvanometer in opposite direction. Magnet is held stationary at the same position, no deflection in the magnetic field. So that are the results we have concluded from Faraday's observation, and this is the concept of electromagnetic induction. Okay, hope it is now clear to all of you. ये important slide है, इसको note करने. Okay, these are the conclusions we have get from the Faraday's experiment, Faraday's observation. All of you, is it clear to all of you? Yes, Ishna, Mushtaba, Ayan, Maham. The camera must be on. Alas. इसको आप नोट कर लें. Okay, Maham. Okay, Anas. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. Yes, Mushtaba, Maham, Mushna, Ayan. Marine, Shiza. Your camera are still on. अब जबकि कैमरा ऑफ होंगे मैं आपको रिमूव कर दूंगा.
cameras are off. Unless your camera is off, Maham, okay, Maham has issue. Mustafa, the camera must be on. हाँ ना मिस मेरा यहाँ तक क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी हादसे का याद? हाँ, ओके। अब पारिस का हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ तक के टॉपिक्स को जो आज हमने रिकॉल किया है, दैट इज history of electromagnetism, from where this electromagnetism starts, and we have discussed about our state experiment, and then we have discussed about electromagnetic induction and Faraday's observation. Tomorrow we will discuss about Faraday's solenoid experiment and Faraday's iron ring experiment, जिसकी ये इन एक्सपेरिमेंट की बेस ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर्स Faraday's एक्सपेरिमेंट से लिंक है, यानी उनकी बेस पर ही ये एप्लीकेशन हुई है। So tomorrow class is very important because transformer and AC generators are important topic. तो उनकी अगर आपको बेस समझ नहीं आएगी तो आपको ट्रांसफार्मर समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर रिकॉल कर देती हूँ। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था electromagnetic induction. Electromagnetic induction को I'm recalling you again. Electromagnetic induction is phenomena of inducing EMF when there is a change in magnetic field. So what are the important thing? Induce EMF जब होगी when there is a change in magnetic field. ठीक है, अगर मुझे इस मैग्नीट्यूड को, inducing current के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना है, so what are the three factors I have to keep in my mind? Number one, turns of solenoid. If I increase the number of turns of solenoid, I will experience a good result, more deflection. Similarly, if I increase the strength of the magnet, I will experience more deflection in galvanometer. Secondly, if I increase the speed of moving magnet, अगर magnet stationary है, I will feel no deflection in the galvanometer. Similarly, if I'm moving inward, if I'm moving magnet inside the solenoid, solenoid की तरफ लेके जा रही हूँ, I will feel deflection. और अगर मैं उसकी स्पीड बढ़ा दूंगी, मुझे ज्यादा डिफ्लेक्शन फील होगी। ठीक है, so moving magnetic field is inducing more current. More current, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं उसको विड्रॉ करती हूँ सोलेनाइड से, मेरी जो डिफ्लेक्शन है अपोजिट साइड पे होगी, और अगर मेरी विड्रॉल स्पीड ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होगी। सो दीस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, और स्टार्टिंग में हमने और स्टेट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, जिसमें भी आपने यही देखा था कि आपके पास अगर सर्किट ओपन है, you can feel no deflection in compass. If your circuit is closed, तो आपके पास कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। और हमने क्या कंक्लूड किया था कि मूविंग करंट थ्रू दिस कॉइल, मूविंग करंट थ्रू दिस स्ट्रेट वायर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जो कि आपके कंपास में डिफ्लेक्शन से शो हो रही थी। ओके, तो ये हमारा था आज का लेक्चर, और हम यहाँ पर एंड करते हैं। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
कल हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्राइडेज एक्सपेरिमेंट। आज हमने फ्राइडेज ऑब्जर्वेशन देखी थी विच इज एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्राइडेज ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन कर रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको क्लियर है? यस अभी सब बोलते हो क्लियर है, और जब टेस्ट होता है तो फिर ऐसे ऐसे आंसर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हैं, और इसका जो भी लेक्चर है उसको अपनी कॉपी में मेंटेन रखिएगा। और अब इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट मंडे से आप लोग आते हो तो योर कॉपी मस्ट बी मेंटेन्ड। आपको जो टेस्ट दिया था उसका प्रिंट आउट आपकी कॉपी में लगा होना चाहिए, क्योंकि मैं वहीं पे चेक भी करूंगी। और चाहते हो तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की हैं आपने अपनी कॉपी में अटैच करनी है। आपका अभी तक का लास्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म का कंप्लीट होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर लेक्चर दे रही हूँ, ये भी कंप्लीट होना चाहिए। ओके, मैं क्लास यहाँ पर एंड कर रही हूँ। ओके, आई हैव टेकन योर अटेंडेंस already, so you can leave now. Allah Hafiz.